الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، قرآن عظیم فرقان مجید کے مضامین کے بیان کا آج 11واں سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گزشتہ 10 سلسلوں میں اور آج 11ویں مضامین کے بیان کے سلسلہ میں استفادہ کر رہے ہیں۔ مرشد کریم مفسر قرآن شیخ الحدیث مفکر اسلام غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کی تفسیر تبصرہ سے گزشتہ سے وابستہ اسباق سے گفتگو کو متعلق کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات کے اوپر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ صاحب تبصرہ رقم تراز ہیں کہ قرآن نازل کرنا، حروف اتارنا، سر پر نبوت کا تاج رکھنا، شہادتوں میں طاقت پیدا کرنا، ابدیت کو قبولیت کا درجہ دینا، دلیلوں کو رنگ اعجاز دے دینا، اداؤں کو ملاکوتیت کا لباس پہنا دینا، وحی کے لیے سینوں کا استفا کرنا، لمحوں میں صدیوں کا انتظار سمو دینا اور صدیوں میں لمحوں کے طور روشن کرنا اور صدیوں میں لمحوں کے طور روشن کرنا سب اللہ کے کام ہیں۔ قرآن والے نے، جلووں والے نے اور حیات نواز رب نے شک والوں کو مخاطب کر کے چیلنج کر دیا، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی کوئی شک و شبہ ہے تو اس کی صورتوں میں سے کسی چھوٹی سی صورت، ایسی صورت ہی لے آؤ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ یہ جملہ اگر تم سچے ہو اس کے اندر شرط معلق ہے، یعنی ان لوگوں کا شک میں مبتلا ہونا۔ علم معانی کے مطابق ان نے وقوع شرط میں جزم کو توڑ دیا ہے اور مخاطب کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ چیلنج کو پورا کر سکے۔ اس وجہ کی بنا پر شرط کی گویا تو بیخ ہو گئی۔ معنی یہ نکلا کہ قرآن میں شک کرنا ایک نابودی اور چھچوری سی بات ہے۔ قرآن کی بلاغت کے دلائل اظہر من الشمس ہیں۔ آیت کے اندر ظرفیت یعنی فی ریب نے بتایا کہ مشرکین عرب شکوک اور شبہات کے اندر گویا محصور تھے۔ ذہنی الجھنوں اور تہمات نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ باطن کی انہی تاریکیوں نے انہیں بے باک، فسادی، گستاخ اور توہین کرنے والا بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت منفی سوچوں کے حصار میں رہتے تھے۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ نے تنزیل باب تفعیل استعمال کیا جو تدریجاً نزول کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے لیے یہ اسلوب اس طرف معنی کا رخ پھیر دیتا ہے کہ یہ کلام شعلہ برق کی طرح نہیں کہ آیا اور پھر چلا گیا۔ یہ مستقل نور ہے۔ اس کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے تاکہ اسے پڑھنا آسان ہو اور اسے یاد کرنا سہل ہو، اس کی تعلیم میں آسانی ہو، اس میں غور کرنا دقت نہ رکھتا ہو۔ کلام کی حفاظت تدریجاً نزول ہی کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور بیضاوی نے یہ حکمت بھی لکھی کہ تھوڑا تھوڑا اس لیے بھی اتارا کہ جو مقابلہ کرنا چاہے اس کے تھوڑے کا ہی مقابلہ کر لے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو حقانیت قرآن تسلیم کر لی جائے۔ اگر تھوڑا تھوڑا اتارنے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا تو قرآن اگر یک بارگی نازل کر دیا جاتا تو تم لوگوں کی حالت کیا ہوتی؟
आबदी नाम में जमालियाती अदब का हुस्न जन्नत नजीर है। बंदा कहने और अपना बंदा कहने में बड़ा फर्क है। आबदीना अजमत शान की तरफ बलीग इशारा है। कुरान जैसे अपनी अजमत, फजीलत और शान में यकदाई का हामिल है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब्दियत कुर्ब इस्तिफा में ला शरीक लहू है। सनम परस्त और बुत परस्त पत्थरों को अल्लाह का शरीक समझकर इन्हें फजीलत माब समझते। रब्बे करीम ने समझा दिया कि माबूद होना एक ही जात को सजदा है। मखलूक में अगर कोई मकाम फजीलत माब है तो वो सिर्फ अब्दियत है। रब्बे करीम ने अपने रसूल के लिए अब्दिना कहकर लोगों को समझाया कि महबूबियत में बेमिसल होने का एजाज अब्दियत में भी मिल सकता है। अब्दिना में ये हिकमत भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल अंबिया होकर भी अब्दिना है। जब ये अल्लाह के शरीक नहीं तो कोई और अल्लाह का हमसर नहीं हो सकता। कुरान मजीद ने अब्दिना और अब्दुहु कहकर इल्मी मोजज़ात में कुरान और मादी तस्खीर के एजाज में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, इसलिए कि बंदों को पता चल जाए कि बंदगी के आईना में कायनात के हर रंग की तस्वीर देखी जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि अब्दियत मजद इंसानियत की महराज कुबरा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, बंदा हक बेनियाज अज हर मकाम, न गलाम ऊरा न ऊकसरा गुलाम, फातु भी सूरत में मिस्ल ही। सूरत का माना क्या है और इस्तिलाह में सूरत से क्या मुराद है? सूरत का मादा सीन, वाव और रा है। इसका लोवी और असासी माना ऊपर चढ़ जाना होता है। तसूरतल मस्जिद का माना होगा मैं मस्जिद पर चढ़ गया। शहर पनाह को असौर कहते हैं। बुलंदी, फजीलत और शर्फ के मानों में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। सूरतुल सुल्तान का मतलब होगा अमीर आला की शौकत, दबदबा और जाहो जलाल। असवार वो कंगन जो ताज की जगह सरदार लोग पहनते हैं। असवार का मानी वो इमारत भी होती है जो खूबसूरत भी हो और आसमान की तरफ मुर्तफे भी हो। कुरान मजीद की सूरत को भी सूरत इसलिए कहते हैं कि वो फजीलत माब, बुलंद दर्जा, बुलंद मकाम और आली मर्तबत होती है। दूसरी तोजी भी की गई है कि कुरान हकीम की हर पहली सूरत आने वाली सूरत के लिए सीढ़ी का काम देती है। इसलिए इस अजीम मानवियत की बिना पर इसे सूरत से ताबीर कर देते हैं। तीसरी तोजी की गई कि कुरान हकीम में सूरतों की तरतीब एक हसीन, अजीम और खूबसूरत महल की तरह है जिसकी ज़ेबाइश, बुलंदी, तरतीब और उसलूब सब कुछ रूह में खुप जाने वाले हैं, इसलिए इसका नाम सूरत रखा गया है। चौथी तोजी ये की गई कि इसमें अल्फाज से लेकर अहकाम तक सब कुछ महफूज कर दिया गया है, जिस तरह शहर पनाह से शहर को महफूज किया होता है। इसी तरह कुरान मजीद की सूरतों ने मखसूस अहकाम और अल्फाज के मजमूओं की हिफाजत की है। पांचवी ताबीर यह है कि सूरत का मतलब अलामत भी होता है। मखसूस अल्फाज के मजमूओं को कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ नाम देकर निशान कायम कर दिए गए हैं। इससे कुरान मजीद की हिफाजत और याद करना सहल हो गया है। कुरान मजीद में सूरतों की तादाद 114, इनमें से बाज बड़ी हैं और बाज छोटी हैं। अब कुरान मजीद की तहद्दी और चैलेंज को समझना आसान हो गया। मिस्ली में ज़मीर का मुरज्जा क्या है और मिन किस माना में इस्तेमाल हो रहा। बेजाबी लिखते हैं, पहली सूरत यह है कि मिन बयानिया हो, दूसरी सूरत यह है कि मिन जायदा हो और तीसरी सूरत यह है कि मिन इब्तदाइया हो। पहली दोनों सूरतों में ज़मीर का मुरज्जा मिम्मा नज़लना होगा और जार मजरूर मिलकर सूरत की सिफ्त बनाएंगे। माना यह बनेगा कि तुम ऐसी सूरत लाओ जो हुस्न नज़्म,
नुतरत उसलूब और बलागत में कुरान ऐसी सूरत हो। तीसरी सूरत में अगर मिन इब्तदाइया हो तो माना यह होगा कि ऐसी सूरत लेकर कोई ऐसा आदमी मैदान में निकले जो हमारे बंदे खास ऐसा हो। इस सूरत में जमीर का मुरज्जा अब देना होगा। यही बात इब्ने कसीर ने भी लिखी है। बेजावी ने पहली ताबीर पसंद की है, जबकि इब्ने कसीर दोनों ताबीरात को बराबर जोर के साथ बयान करते हैं। ये अलग बात है कि इब्ने कसीर को तराजम निगार माठे मिले हैं। वद ओ शुहदाअकुम, शहीद, गवाह, तर्जमान, नुमाइंदा, मददगार और हमायती के मानों में इस्तेमाल होता है। अरबों के माशरे में शायरी को इज्जत और तकरीम की निगाह से देखा जाता था। मुशरिकीन का यह अकीदा था हर शायर के साथ एक जिन होता है जो इसके दिल में कलाम डालता है। यही वजह थी कि वो कुरान हकीम के बारे में भी इस बातिल अकीदा का शिकार थे कि यह भी तराशीदा कलाम है जो किसी बशर ने घड़ लिया है या फिर किसी जिन की मदद से हासिल कर लिया गया है। कुरान मजीद ने इनके बातिल नजरियात के वजूद पर संगीन चोट मारी है कि अगर तुम किसी शक में पड़े हुए हो तो बुला लो अपने तर्जमानों, मददगारों और हमायतियों को कि कुरान मजीद की सूरत ऐसी सूरत ले आए। यह तहद्दी और चैलेंज जिस माहौल में कुरान की तरफ से हुआ वो अनजान और दीवाने लोगों के नाम न था, बल्कि वो रमूज़े कलाम जानने वाले थे। इन्हें लफ्जों की सवारियों पर बैठना आता था। वो बलागत और फसाहत के दीवाने थे। फसलुल खिताब का हुस्न इनकी बातों में मौजूद होता। वो गज़ाज़त लफ्जी से आगाह कौम थी। हिदायत कलामी इनकी शायरी और नसर का हिस्सा था। मदा और हुजूम में वो महारत रखते थे। सच्ची बात है कि वस्ल का हुस्न, वस्ल का जमाल, मदा का बांकपन, मदा की इफ़्फ़त, अतनाब की हिकमत और हुशू की बोरियत, सबसे वो लोग आगाह थे। मोहम्मद जमालुद्दीन कासमी ने सही लिखा कि कुरान जिस माहौल में उतरा लोग लफ्जों के शिकार, तरकीबों की तीरंदाजी, लहजों की नहबदारी और नगज गोई की महारत में यदे तूला रखते थे। मुश्किल वादियों से गुजर कर बबोर के कांटों से लिबास में पैबंद लगाकर लबे सहरा बज़ में अदब सजाना इनकी जिंदगी का जायका था। वो लफ्जों की जजालत, कलाम की तलाकत, अदब की ज़हामत, तबीयत की जौहरियत, महफिलें लूटने की बारहियत, कलमात की जामियत, मजाजों की सहूलत, अखबाल में अदम किल्फत, हाशिया आराई में रिक्कत, कलामी हुस्न की हर अदा और मानवियत से आशना लोग थे। कुरान ने ऐसे लोगों को झिझोड़ा। कुरान की सूरत ऐसी सूरत ही ले आओ। मिन दूनिल्लाह, कुरान मजीद में दून लफ्ज 4 मानी में इस्तेमाल हुआ है। पहला माना यह है कि दून उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो करीब तर हो। तदवीनुल कुतब से मुराद होती है लफ्जों को लफ्जों से, मानी को नज्म से और कलिमात को मतालिब से करीब करके अदब का जहां बसा लेना। दुनिया को भी दुनिया इसलिए कहते हैं कि वो आखिरत की निस्बत करीब और पहले होती है। दूसरा माना मजाजी है। मर्तबा, दर्जा और मकाम में से किसी से फरोतर होना कहा जाता है। जैद उम्र से दर्जा में कम है। हकीर चीज को शाई दून कह देते हैं। तीसरा माना एक हद से तजावुज करके दूसरी हद तक पहुंच जाना। चौथा माना सामने और आगे का भी होता है। सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए मुर्शद करीम रकम तराज हैं। बेजावी ने अगरचे यही 4 माना लिखे हैं, लेकिन आइम्मा लुगत ने दून का मानी कटना और किसी चीज का गैर होना भी लिखा है। रागिब इस्फहानी ने लिखा कि दून फर्क
की जिद में नीचे के मानों में इस्तेमाल होता है। इब्न मंजूर और जुबैदी हनफी ने लिखा कि ये लफ्ज अजदाद से है, आगे पीछे ऊपर और नीचे सब मानी के लिए ये इस्तेमाल होता है। रागिब की ये बात पसंदीदा है। वो लिखते हैं किसी चीज तक पहुंचने से कासर रह जाना, वरे रह जाना और उधर ही रह जाना दून है। मिन दूनिल्लाह का माना होगा अल्लाह तक ना पहुंचना, रास्ते ही में रह जाना। जो कुरान को छोड़ेगा वो हक तक कभी न पहुंच सकेगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने इन तबा के माना की 3 सूरतें लिखी हैं। ताबीर की पहली सूरत यह है, अल्लाह के अलावा जिनके बारे में तुम इलाह होने का अकीदा रखते हो, इन्हें अपनी हमायत में बुला लो। वो कुरान की सूरत ऐसी सूरत तो ले आए या ले आने में मदद करें। ताबीर की दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह के दोस्तों, मानने वालों और ईमान वालों के अलावा दूसरों को मदद के लिए पुकार, देखो कि वो गवाही दें कि तुम कुरान की मिसल ला सकते हो, या तुम्हारी कामयाबी में हमायती बनकर कुरान की तहद्दी कबूल करके देख लें। तुम सब क्या चीज हो। झूठों में ताकत होती कब है और सच्चे कुरान के खिलाफ होते नहीं। ताबीर की तीसरी सूरत यह है कि इस जुमला का ताल्लुक अदअू से है। माना यह होगा कि अल्लाह के सिवा गवाह बुला लो जो ये कह सके कि अल्लाह गवाह है, हमारा दावा हक है। ये नूर कुरान मानने वालों ही की जुबान से सादिर हो सकता है। इन कुंतुम सादिकीन, मुशरिकीन अरब सच्चे नहीं थे, लेकिन जिस कौम ने इन्हें झंझोड़ा था उनका बच्चा बच्चा कुरान की आगोश में तरबियत में सिद्क के नूर में नहाया हुआ था। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात नूर ने अरबों के जहन, काल्ब और रूह से सीरत की अजमत और फजीलत मनवा ली थी कि सादिक और अमीन आप ही हैं, और ये भी कि सिद्क और सच्चाई के मानवी अजमतों ने दुनिया की तमाम अकवाम से ये इखलाकी हकीकत तस्लीम करवा ली थी कि तस्खीर कायनात की चाबी सिद्क और सदाकत ही है। इसलिए मुशरिकीन भी अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते थे, बल्कि सादिक और सच्चा ही कहते थे। कुरान वालों के लिए कितनी मुश्किलें थीं जब झूठ वाले भी हजार किस्म के जहर पीकर दावा अपने सच्चा होने का ही करते थे। कुरान मजीद ने दुनिया भर के झूठों के गुब्बारे से हवा निकाल दी और कहा कि कुरान मजीद की किसी छोटी सी सूरत ऐसी सूरत ही बना लो। अगर सिद्क और सच की हकीकत का सही वज़न मालूम करना चाहते हो, ये काम तो तुमसे हो नहीं सकता। फलिहाजा दोज़ख की आग से डरो जिसका ईंधन गुनाहगार और मक्कार लोग हैं। यहां पे हम एक चीज का इजाफा अपने नाज़रीन गरामी के लिए करना चाहेंगे कि आइन के जिस आर्टिकल 61, 62 या 63 के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए और इस जमहूरी तमाशा के तौर पे लफ्ज सादिक और अमीन इस्तेमाल किया जाता है, राय है कि इसको रिप्लेस, इसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज आ जाना चाहिए। इसलिए कि सादिक और अमीन का लफ्ज ज़ेबा है, तो वो आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर के साथ ही ज़ेबा है। बहरहाल शाजी जान मद्दज़िल्लाहुल आली ने जो रकम फरमाया वो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद अगली आयात को मुलाहिजा करते हैं। उनके मानी और मतालिब और उनके जो तफसीरी महासन हैं उनको मुर्शद करीम के अल्फाज में जानने की सही करते हैं। इरशाद बारी ताला का तर्जमा है, फिर अगर तुम न कर सके और तुमने करना भी क्या है, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार रखी गई है काफरों के लिए। और खुशखबरी दीजिए ईमान वालों और अच्छे अमल करने वालों को कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें रवा दमा हैं। जब भी इन्हें कोई फल खाने के लिए मिलेगा पुकार उठेंगे, ये तो वही है जो पहले ही हमें दिया जा चुका है। हूबहू इससे मिलता जुलता दिया जाएगा और उनके लिए वहां पाकीज़ा जोड़े होंगे और वो हमेशा वहीं रहेंगे।
ترجمہ: پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم نے کرنا بھی کیا ہے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافرین، منکرین اور مشککین کو کتاب کریم نے جھنجھوڑتے ہوئے تحدی کے انداز میں مخاطب کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً تم کر بھی نہیں سکتے۔ قرآن کا توڑ انہوں نے کیا لانا تھا؟ قرآن مجید نے قیامت تک آنے اور ابھرنے والوں منکروں کی جماعتی قوتوں کا راز تش تش بام کر دیا کہ تم کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن اور عقل زنگ آلود ہے۔ اگر تم قرآن کو تسلیم نہ کرو تو یہ تمہارے نالائق ہونے کی دلیل ہے، اگر تم قرآن کے مقابلے میں نکلو تو یہ تمہارے بے ذوق، ڈھیٹ اور جاہل ہونے کی علامت ہے، اور اگر تم قرآن اور حجتی قرآن کا تاریخی فیصلہ اپنی ہدایت کا وسیلہ نہ بنا سکو تو یہ تمہارے کوربین ہونے کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو قرآنی دعویٰ اور چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے لیکن وہ اس کے ساتھ منکر کے منکر رہے۔ قرآن مجید انہیں شدید اور لرزہ فکن تہدید سے خبردار کرتا ہے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی وعید سنگ دل لوگوں کو ہلاتی ہے کہ اس کتاب کے نظام بابرکت کو قبول نہ کرنے کے نقصانات تمہاری شخصیت کے بارے میں ہلاکت کا پیغام دیتے ہیں۔ شکوک اور شبہات تمہیں کھا جائیں گے، باطنی الجھنیں تمہیں سکون سے محروم کر دیں گی، ہر قسم کے فتنے تمہیں ہلاکت کے ظرف میں مقید کر دیں گے، نزول رحمت سے محرومی تمہاری شقاوت کی بنیاد بن جائے گی، ابدیت کا راز درون نہ جاننے کی وجہ سے تمہیں جمالیاتی اور عقاد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ابدیت کا راز درون نہ جاننے کی وجہ سے تمہیں جمالیاتی ادراکات سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری تمہاری تباہی کی سرنوشت بن جائے گی۔ ایک جلا دینے والی آگ میں تمہیں پٹخ دیا جائے گا، وہ آگ جو پتھروں کو بھی کھا جائے گی تمہیں کہاں چھوڑے گی۔ تمہارے سامنے تمہارے بتوں کو بھی تم سمیت آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر شام شیطان اپنے سرداروں کی طرف واپس ہو کر اپنے کردار اور کرتوت سے اسے آگاہ کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا اور یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں عبادت گزار کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ ان شیطانوں میں سے ایک ذلیل ترین شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج ایک لڑکے کو قرآن پڑھنے سے روک دیا۔ اس پر ابلیس اٹھ کر اس کی تعظیم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: قرآن پڑھنا، اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی اولاد کا پیار۔ ہمارے دور کے انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں گم ہو چکا ہے، صراط مستقیم سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں، اسے کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں رہی، اسے اندر سے اندیشے کاٹ رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی کے مرض نے اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ جب تک آج کا انسان اپنے عقیدہ کو مضبوط نہیں کر لیتا، وہ پگھلتا رہے گا، وہ الجھا رہے گا، اس کی سانسیں اکھڑی رہیں گی، اس پر سکتہ طاری رہے گا اور اس کے گلے شکوے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ترقی کا صراط مستقیم قرآن حکیم ہے، جمالیاتی جنتوں کا شہریار صاحب قرآن ہے۔ ان سے وابستگی ہی میں ایمان کا چراغاں ہو سکے گا۔ آندھیوں میں چڑیا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے لیے امن کی اماجگاہ اس کا نشیمن ہے، لیکن انسان آغوش رحمت کی پہچان کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کی دولت کا ہر سکہ اسے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف ایک نئے دھوکے اور تشکیک کا سبق دے رہا ہے۔ آئیے ریڈیو، ٹی وی، محراب، خانقاہ، ہر جگہ اور ہر جا
पढ़े जाने वाले कुरान को बेरैब किताब मानकर पढ़ लें और पढ़ा लें, सीख लें और सिखा लें और सोच लें, इस पर अमल कर लें। नजात का रास्ता यही है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने आसमान की तरफ गौर से देखा और फिर फरमाया, वक्त भी आने वाला है जब लोगों से इल्म छीन लिया जाएगा, यहां तक कि वो थोड़े से इल्म पर भी कुदरत नहीं रखेंगे। हज़रत ज़ियाद बिन लबीद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इल्म हमसे कैसे अचानक लिया जाएगा जबकि हमने कुरान पढ़ रखा है। अल्लाह की कसम, हम इसे जरूर पढ़ते रहेंगे और अपनी औरतों और बच्चों को भी कुरान पढ़ाते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ियाद, तेरी अम्मा तुझे गुम पाए, बेशक मैं तुझे अहले मदीना के फुकाहा में से गिनता हूं। ये जो तौरात और इंजील यहूदियों और ईसाइयों के पास हैं, ये इन्हें क्या फायदा पहुंचाती हैं। तर्जमा, और खुशखबरी दीजिए ईमान वालों और अच्छे अमल करने वालों को कि इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा हैं। जब भी इन्हें कोई फल खाने के लिए मिलेगा, पुकार उठेंगे, ये तो वही है जो पहले ही हमें दिया जा चुका है। हूबहू इससे मिलता जुलता दिया जाएगा और इनके लिए वहां पाकीज़ा जोड़े होंगे और वो हमेशा वहीं रहेंगे। इस आया करीमा की तफहीम में 10 तज़कीरात हैं। तज़कीर उला यह है कि बशारत का लफ्ज हर उस खबर के लिए इस्तेमाल होता है जिसका असर चेहरा और रुखसारों पर जाहिर हो। यह खबर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। कुरान मजीद ने जन्नत की बिशारत दी है। जाहिर है, बागात, रमा दमा नहरों, उछलते कूदते चश्मों और बल खाती नदियों का जिक्र सुनने से चेहरे खिल उठते हैं और खुशी और मुसर्रत में फूल बन जाते। कुरान मजीद में फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम भी कहा है। यहां बिशारत का मतलब अजाब की खबर सुनकर चेहरों का उतर जाना है और ऐसे लगता है जैसे चेहरे जलकर आग का कोयला बन गए। ज़ेरे तफसीर आयत में बिशारत ईमान वालों और आमाल साले बजा लाने वालों के लिए, इसलिए यहां बिशारत का इतलाक खुशियों और मुसर्रतों के हुजूम पर होगा। आयत में दूसरी तज़कीर अत्फ का मसला है। यहां व इन कुंतुम फी रैब से लेकर उइद्दत लिल काफिरीन तक शर्त और जजा का मजमुआ मातूफ अलैह है और बशर से लेकर खालिदून तक पूरा जुमला मातूफ है। इसको मजीद यूं कहा जा सकता है कि यहां पूरे किस्से का अत्फ पूरे किस्से पर है। ऐसे अत्फ में जुमलों की मुनासिबत का ख्याल रखना जरूरी नहीं होता, बल्कि मकसद की मुनासिबत काफी होती है। यही वजह है आप देखेंगे कि यहां बाज जुमले इंशाइया हैं और बाज खबरिया हैं। बेज़ावी ने दूसरी सूरत ये बयान की है कि इस जुमले का अर्थ फत्तकुन नार पर है। इस सूरत में माना यह होगा कि कुरान के मुकाबले में छोटी सी सूरत लाने से कुफार का इज्ज और ईमान न लाने की वजह से वो अजाब के मुस्तहिक हुए और वो लोग जो ईमान लाए वो सवाब और बशारत के मुस्तहिक ठहरे। गोया काफरों के लिए वईद है और मोमिनों के लिए बशारत है और यही इस्तेहकाक मातूफ अलैह और मातूफ में मुनासिबत है। आयत की ताबीर में तीसरी जहत यह है कि इस बात को गौर फिक्र का नसाब बनाया जाए कि कुरान मजीद के मुबशरात जहां भी ईमानी जिंदगी की फजीलतों पर मुर्तकिज हुए हैं, अमाल साले का जिक्र जरूर हुआ है। ईमान और अमल साले से एक ही किस्म की शुआए नूर फूटती है। ये दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। उसूली तौर पर ईमान की हैसियत एक ताबेदार और सायादार शगुफ्ता दरख्त की है और अमाल सालेहा इसी दरख्त का मीठा और लजीज फल है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ईमान की हैसियत उसूली है और अमाल सालिहा की हैसियत ईमान की बुनियाद पर मसूलियत रखती है, लेकिन हैं दोनों जरूरी जिनके बगैर इस्लामी तरबियत का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। आयत की तशरीह में चौथी तज़कीर यह है कि जाना जाए अमाल साले से मुराद
کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے یہ بات اچھی طرح پڑھنے والے پر عیاں ہو جاتی ہے کہ صلح فساد کی ضد ہے۔ اس تقابل سے صلاح کا معنی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ عام طور پر لفظ خرابیوں اور نقائص دور کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ائمہ لغت نے یہ لکھا ہے کہ عقل و شریعت کی مدد سے حالات میں اعتدال اور توازن پیدا کرنا یہ صلاح ہے، یعنی جس چیز کو حسن اور تناسب میں جہاں ہونا چاہیے ادھر پہنچ جانا عمل صالح ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الجامعہ علامہ محب النبی شاہ جی چاند مدثر اللہ العالی رقم تراز ہیں کہ ان کے استاد محترم شیخ الجامعہ علامہ محب النبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کی زندگی گزارنا اصلاح ہے۔ شیخ القرآن استاذ الاساتذہ قاضی محمد اسرار الحق حقانی نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ حضرت محدث پڑھانوی کے حوالے سے فرمایا، آپ عمل صالح کی تعریف یہ کرتے تھے کہ اعمال میں پختگی آ جانا اور ان کا شریعت کے مطابق ہو جانا۔ إن الديار ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم باد صبا تیرا گزر ہو کر کبھی سوئے حرم روزے پہ لے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے شیخ القرآن استاذ الاساتذہ قاضی محمد اسرار الحق حقانی نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ حضرت محدث پڑھانوی کے حوالے سے فرمایا، آپ عمل صالح کی تعریف یہ کرتے تھے کہ اعمال میں پختگی آ جانا اور ان کا شریعت کے مطابق ہو جانا۔ علامہ جمال الدین قاسمی نے لکھا کہ عمل صالح اصلاح قلب کا دوسرا نام ہے۔ علامہ بغوی نے معاذ کے حوالے سے لکھا کہ عمل صالح وہ ہے جس پر میں 4 چیزیں ہوں: علم، نیت، صبر اور خلوص۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اعمال کے صالح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعمال بے ریا ہو جائیں۔ علامہ الجابی اور علامہ الواحدی نے اصلاحات سے مراد طاعت کا معنی لکھا ہے۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبود کو محبوب بنا کر اس کی مرضی پانا اور پھر اپنا سب کچھ اس راہ میں وار دینا عمل صالح ہے۔ میرے جد امجد صحابی پیر سید شاہ نجیب اپنی کلمی کتاب مطلوب الطالبین شاہ جی جان مدثر اللہ العالی نے اپنے بارے میں یوں لکھا: تفسیر تبصرہ ہمارے زیر غور اور زیر مطالعہ ہے اور ہم مل کر اس لائیو براڈ کاسٹ کے ذریعہ اس کی دہرائی کر رہے ہیں۔ شاہ جی جان مرشد کریم علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدثر اللہ العالی رقم تراز ہیں کہ میرے جد امجد صحابی پیر سید شاہ نجیب اپنی کلمی کتاب مطلوب الطالبین میں رقم فرماتے ہیں، اعمال صالح وہ ہوتے ہیں جن کے نتائج اچھے ہوں۔ حضرت شاہ رؤوف احمد مجددی نے اعمال صالح کا معنی فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات سب لیے ہیں۔ ملا حسین کاشفی نے اعمال صالح کا اطلاق طاعت کے بجا لانے اور ممنوعات سے بچنے پر بھی کیا ہے۔ آیت کی 5ویں تذکیر یہ جاننا ہے کہ ایمان والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کی جزا باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ جنات جنہ کی جمع ہے۔ عربی زبان میں جس مادہ کے اندر جیم اور نون آئے اس میں پوشیدگی اور اخفاء کا معنی پایا جاتا ہے۔ جن کا مطلب ہوتا ہے وہ نظر نہ آنے والی مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہو۔
जिन्ना उस हथियार को कहते हैं जिससे इंसान अपनी हिफाजत करे। जिन्ना और मुजन्ना ढाल को भी कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सोम जिन्ना, रोजा ढाल है। जिन्ना खजूरों, अंगूरों और दीगर फलों के बाग को कह देते हैं। उर्फ में खजूरों और अंगूरों के बाग को जिन्ना कहते हैं और दूसरे फलों और दरख्तों पर मुश्तमिल बाग को हदीका कहते हैं। याद रहे कि वो बागात जिनको पानी बाहर से लाकर देना पड़े, इसमें तरावत और ताजगी बहुत कम होती है। वो बागात जहां पानी का वाफर बंदोबस्त हो, वहां पैदा होने वाले दरख्त हुस्न अफरोज होते हैं और इन पर आने वाले फल लजीज और फरत बख्श होता है। और बाग अगर ऊंची जगह हो तो वो महफूज भी होता है। कुरान मजीद ने ईमान और अमाल की जजा में जिन्ना यानी जिन्नात का जिक्र किया है। मुराद यह है कि मुतअद्दिद बाग अल्लाह अहले ईमान को इनाम में अता फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें रवा दवा होंगी। ये इशारा पानी के वफूर होने की तरफ है। और फिर नहरें कल्बी और रूही निशात में भी इजाफा कर देने वाली होती हैं। आप समाप्त फरमा रहे हैं 11वीं नशिस्त कुरान अजीम के मज़ामीन की, और हमारे पेश नज़र मुर्शिद करीम अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी की तफसीर तबसरा, जिससे हम बाहमी तौर पर इआदे मज़ामीन कर रहे हैं। इब्ने अतिया ने रवायत किया कि जन्नत की नहरों की नालियां नहीं हैं, बल्कि वो जन्नत की सतह पर कुदरत इलाहिया से मुनज़बत होकर चलती हैं। अहले जन्नत जिधर चाहेंगे नहरें उधर ही जारी हो जाएंगी। इनमें न पानी की कमी होगी, न इनमें सैलाब आएगा। इनमें जारी पानी का निशात और जायका नुदरत आमेज और रंग आमेज होगा। कभी साफ शफाफ और नूर रंग, कभी पानी के कतरों में रंगों की धनक नजारा को जाजिब बना देगी। आयत में जिन्नात जमा और नकरा बयान होने की हिकमत यह है कि जन्नत एक नहीं 7 है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से 7 जन्नतों के ये नाम मरवी हैं। पहला जन्नतुल फिरदौस या जन्नत फिरदौस, दूसरा जन्नत आदन, जन्नतुल आदन, तीसरा जन्नतुल नाईम, चौथा दारुल खुल्द, पांचवा जन्नतुल मावा, छठा दारुल इस्लाम, सातवां इल्लियून। आया बय्यना में छठी ताबीर कुल्लमा रुज़िकु से ताल्लुक रखती है। काजी बेजाबी लिखते हैं कि कुल्लमा ज़र्फ होने की वजह से मंसूब और तकरार के लिए कुरान मजीद का ये हिस्सा या तो जन्नात की सिफ्त सानिया है या फिर मुब्तदा महजूफ की खबर है जो हम या ही ज़मीर है। और ये भी हो सकता है कि ये जुमला मुस्तनाफा हो। मिनहा और मिन समरा में मिन इब्तदाइया है या फिर बयानिया और रिज़्क़ा बमानी मरजूक है। जन्नत में अहले जन्नत को जो कुछ पहले दिया जाएगा, जब वो दोबारा इनके पास वो चीज लाई जाएगी, वो कहेंगे ये तो वही है जो पहले हम खा चुके हैं। लेकिन जब इसे खाएंगे तो महसूस करेंगे कि नए जायके, नई लज्जत, नए नशात और नई फरहत इन्हें अल्लाह ने इन फलों में अता फरमाई है। गोया जन्नत में हर नई गजाई लज्जत और जायका देगी, जबकि शक्लों में कोई तफावुत न होगा। मुफस्सरीन ने यह भी लिखा है कि जन्नत के मेवे बज़ाहिर वही होंगे जो दुनिया में मिलते थे, लेकिन खाने पर महसूस होगा कि जन्नत के फलों के जायके का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुमकिन है मेवे दुनिया के मेवों की शक्ल में इसलिए दिए जाएंगे कि गैर मानूसियत न हो। आयत की 7वीं तज़कीर अहले जन्नत की इस जुमले की तफहीम में है कि ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया है और इन्हें इस रिस्क से मिलता जुलता रिस्क दिया जाएगा। ज़ेरे बहस आयत में कालू से मुराद अहले जन्नत के दिल में गुजरने वाला ख्याल है। वो सोचेंगे कि दुनिया में कुरान मजीद ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नेमतों की बिशारत दी थी, वही नेमतें अब अल्लाह ताला ने जन्नत में मुतशक्किल कर दी हैं।
जन्नत में मुतशक्किल करके हमें अता कर दी हैं, गोया दुनिया में ये महज बशारत थी, अब हकीकत बनकर वो जलवागर हो गई है। सुभान अल्लाह। आयत में 8वां नुक्ता अज़वाजुम मुताहर्रा से ताल्लुक रखता है। अज़वाजुम जोज की जमा है और इसका माना जोड़ा होता है। ये बात ज़हन में रहे कि औरत के लिए मर्द जोड़ा होता है और मर्द के लिए औरत जोड़ा होती है। कुरान मजीद ने इंसान की तस्कीन रूहानी और इत्मीनान नफ्सी के लिए इस नेमत का बयान किया है। ये ताबीर मर्दों और औरतों सब के लिए बशारत और पैगाम तौबा है। ताज्जुब है मुफस्सरीन ने जोज लफ्ज जहां भी आया बीवियां ही मुराद दी, हालांकि कुरानी लफ्ज मर्दों और औरतों सब के लिए तस्कीन की ताबीर है। हाँ, बाजारी जहन की नफी कुरान मजीद का लफ्ज मुताहरा कर देता है। इसमें जो जमालियाती, रूहानी, नफसानी, कल्बी और नफ्सियाती तज़किया का पैगाम है वो कुरान ही का हिस्सा है। इसमें तरबियत भी है कि दुनिया में मर्दों और औरतों को तबीयतें संवारनी चाहिए, बदन सुथरे रखने चाहिए, तज़किया की महराज पानी चाहिए। जन्नत में एक दूसरे का साथी बनने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। तहारत का लफ्ज बहुत कुछ वाजे कर देता है और ये भी बताता है कि जन्नत में हर मुयस्सर नेमत का ज़ाहिर और बातन तहारत पर ही मबनी होगा। जन्नत के जो सरदार होंगे इनकी लाजमी निशानी तहारत कुरान ने बयान की है। तर्जमा, अल्लाह तो यही चाहता है कि नबी के घर वालों वो तुमसे हर किस्म की नापाकी को रोक दे और तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। क्या बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल की, हुस्न की और सीरत के तजबा होने की। अली की बात क्या है, अली तो फिर अली हैं और इनकी हर बात अली अली है। वो जन्नती सरदारों के वालिद ग्रामी हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जन्नत की मलका और जन्नती ख्वातीन की शहजादी। तस्कीन आबाद जन्नत के शहजादों के सरदार हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। कुरान हकीम ने सनद दे दी, युताहिरुकुम तत्हीरा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फहम किस कदर खुशबूदार है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। आयत की नौवीं तज़कीर यह है कि जन्नत में रंगारंग नेमत, अनामात और खूबसूरत तकरीमात, मुताहिर जोड़े, लजीज मुतफावत फल और रसीले मेवे, रूह अफजा मनाजिर अहले जन्नत के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। जन्नतियों के लिए दिल रुबाई के खूबसूरत मवाक़े के फल दिए जाएंगे, दुनिया के फलों से मिलते जुलते, लेकिन हकीकत में इन जायकों और खुशबुओं का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। असल में ये लतीफ़ खुश मजाजी है जो अहले जन्नत की तवाज़ु में होगी। वल्लाहु आलम। ये सही बात है कि लतीफ़ खुश तबीयत भी तस्कीन कल्ब और नज़र का सबब होती है। इस आयत में 10वीं तज़कीर खुलूद की बहस है। खालिदून खुल्द या खुलूद से माखूज है। जमूर के नज़दीक इसका मानी किसी चीज़ का अरसा दराज तक बाकी रहना होता है। अक्सर मकामात पर खालिदून के साथ अबदा का लफ्ज़ भी वारिद हुआ है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि जन्नत की नेमतें अबदी और दायमी होंगी। जन्नती लोगों के अबदान को ऐसे अज्जा और अहवाल से मुरक्कब किया जाएगा जिनको तगय्युर और तबद्दुल लाहक नहीं होगा। खालिदून का माना यह है कि जन्नत का तोहफा अहले जन्नत के लिए हमेशा के लिए होगा। अगली आयाते बय्यनात का तर्जमा समात कीजिए और कुछ तफसीली महासन के बाद हम आज की नशिस्त का इख्तिताम चाहेंगे। इरशाद बारी ताला का तर्जमा है, बेशक अल्लाह काबिल शर्म करार नहीं देता इसे कि बयान की जाए मिसाल मच्छर की या इससे भी बढ़कर किसी छोटी चीज की। हाँ, तो ईमान वाले खूब जानते कि यह हक है उनके रब की तरफ से, और जो काफिर हैं सो वो कहते हैं क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के जिक्र से। तो सुनो, गुमराही में रहने देता है, इससे बहुतों को और बहुतों को हदायत अता फरमा देता है। वो गुमराही में नहीं छोड़े रखता मगर इन्हीं को जो फासिक हों। वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह का आयत पुख्ता कर लेने के बाद और काटते हैं जिसे मिलाने का हुक्म अल्लाह ने दिया और जमीन में फसाद डालते हैं, ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब
आयत का तर्जमा और उसके कुछ तफसीरी महासन मुलाहिजा कीजिए। दोबारा तर्जमा, बेशक अल्लाह काबिल शर्म करार नहीं देता इसे के बयान की जाए मसाल मच्छर की या इससे भी बढ़कर किसी छोटी चीज की। हाँ तो ईमान वाले खूब जानते कि यह हक है उनके रब की तरफ से, और जो काफिर हैं सो वो कहते हैं क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के जिक्र से, तो सुनो गुमराही में रहने देता है इससे बोतों को, और बोतों को हदायत अता फरमा देता है, वो गुमराही में नहीं छोड़े रखता मगर इन्हीं को जो फासिक हैं, जो फासिक हों। इस आयत करीमा को समझने के लिए फिक्र फाहम की 5 बुनियादें हैं जो कारी कुरान को गौर व फिक्र की दावत देती हैं। पहली, ज़रबुल मिसल क्या चीज है। दूसरी, हकीर चीजों की मिसाल और ताबीरात की तफहीम में तसहील। तीसरा, अहले ईमान का अंदाज फिक्र और साइब रवैया। चौथा, अहले कुफ्र की बदतमीजियां, तासुब, हठधर्मियां और नाकिस रवैये। पांचवीं, हदायत की राह में फिस्को, फजूर और फसादाना रवैयों की रकावटें। काबिल गौर पहला नुक्ता यह है कि ज़रबुल मिसल को समझा जाए। ज़रब का लुग़वी माना जमीन पर पांव से चलना होता है, और मिसल या मिसाल ताबीर और तावील को दिल में उतारने के लिए वो सहल अंदाज है जिससे आला हकीकत आसानी के साथ अक्ल की गिरफ्त में आ जाए। अच्छी मिसालें जब शोहरत पा जाती हैं तो जैसे मुसाफिर जमीन पर राहों से आगाह होता है, मिसालें भी जुबानें ज़द आम हो जाती हैं। मुख्तलिफ ज़बानों में इस सिनफ़े कलाम की बड़ी अहमियत होती है। अंबिया, मुफक्करीन, मुहसिनीन और मुस्लिहीन उम्मत मिसालों के जरिए अपनी बातों को लोगों की रूहों में उतारते रहते हैं। तौरात और इंजील में मिसालों की बड़ी अहमियत की गई है। ईसा अलैहिस्सलाम की तमसीलात तो हद दर्जा ज्यादा शोहरत रखती हैं। रूहानी हकायक को आसान तरीके से लोगों की अक्ल से मुतकारिब करने और इनमें अमल का आला ज़ौक़ पैदा करने के लिए कुरान मजीद तमसीलात से भरा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे तो आला मिसालों की उम्दा और वकी तारीख है। तमसील में अहमियत इसकी नहीं होती कि किस चीज को मिसाल में लाया जा रहा है, अहमियत मकसद को मुफीद बनाकर सामे के दिल में उतारना होता है। आसान बातों को सौ गुंजलक, पेचीदा और मुबहम लफ्जों में उतार कर शायरी की जा सकती है और अफलातूनियत पूरी की जा सकती है, लेकिन लोगों में हदायत की तहरीक नहीं उठाई जा सकती है।